آپ کو بتائیں کہ کراچی پولیس کا احسن اقدام 138 گاڑیاں اور 503 موٹر سائیکلیں مالکان کے حوالے۔ چوری اور چھینے گئے موبائل فون بھی شہریوں کو واپس کیے گئے۔ کراچی پولیس چیف کا کرائم کم ہونے کا بڑا دعویٰ۔ جبکہ شہریوں سے چوری کے مقدمات درج کروانے کی درخواست کی گئی۔ جاوید عالم اوڈھو نے رواں سال کو گزشتہ برس کی نسبت ہر لحاظ سے بہتر قرار دیا۔ انوشا جعفری رپورٹ کریں گی۔ کراچی پولیس شہریوں کی خدمت میں مصروف عمل۔ شریف آباد میں کراچی کے مختلف علاقوں میں چوری اور چھینی گئی قیمتی گاڑیاں اصل مالکان کے سپرد کر دی گئی۔ تقریب میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی شرکت، ڈی آئی جی CIA SSP AVLC سمیت کئی افسران شریک تھے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کا تقریب میں کہنا تھا کہ شہر میں رواں برس کرائم 24% کم ہوا۔ 3 ماہ کے دوران چوری اور چھینی گئی گاڑیوں میں سے 138 گاڑیاں اور 503 موٹر سائیکلیں ملک کے مختلف شہروں سے برآمد ہوئیں۔ تمام مالکان کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ پورے سال میں تقریباً 2700 سے زیادہ موٹر سائیکل ریکور ہوئے ہیں اور 657 سے زیادہ گاڑیاں ریکور ہو رہے ہیں، اور ان میں سے ابھی 138 گاڑیاں جو ہم ابھی دے رہے ہیں واپس، اور اسی طرح 2700 جو موٹر سائیکل ہیں اس میں 500 کے قریب موٹر سائیکل ہیں جو ہم واپس دے رہے ہیں۔ جاوید عالم اوڈھو نے جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 16% موٹر سائیکل اور گاڑیاں چھیننے کی وارداتیں کم ہوئی۔ پچھلے سال کے مقابلے میں مجموعی طور پہ جس طرح اسٹریٹ کرائم 24% لیس ہے، اور یہ CPLC کی فگر سے، اسی طرح ویہیکولر کرائم بھی 16% سے زیادہ لیس ہوا ہے، اور تقریباً 12-13 ہزار کے قریب موٹر سائیکل کم لفٹ اور سنیچ ہوئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں۔ گاڑیاں واپس پانے والے شہری بولے اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے پولیس کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ اور CCTV کیمرے کے مطابق یہ تقریباً 3:50 پر اسنیچ ہوئی تھی۔ 6 بجے جب ہم اٹھے فجر کے لیے تو اپنے دیکھا گاڑی نہیں ہے۔ ہم نے امیڈیٹلی 15 کال کیا، پھر اس کے بعد ہم تھانے پہنچے رپورٹ کرانے کے لیے۔ ہم نے FIR کٹوائی، اور پھر اس کے بعد یہاں سے CVLC سے جو ہے شاہد راؤ صاحب، ان کی کال آئی، انہوں نے فوراً سے اس کی سرچنگ شروع کی، میری پکچر کی تصویریں منگوائیں، اور بہت افیکٹولی ان لوگوں نے جس طرح سے ٹریس کیا میری گاڑی کو، تو ودن 24 آورس مجھے اپنی گاڑی کا پتہ چل گیا تھا۔ میری تو ودن 10 days گاڑی ریکور ہوئی ہے۔ میری گاڑی کراسنگ سے چوری ہوئی تھی، چوری تھی رات کو تقریباً 5 بجے 5:30 بجے کے قریب۔ AVLC میں جو تھے ان میں نے کمپلین کی تھی اور اس کی FIR بھی لانچ کرائی تھی۔ ملی ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا سے، یہ AVLC والوں نے جو ہے نا وہ کیمرہ کے ذریعے وہاں پہنچے تھے، پھر ان کی مہربانی سے، ریاض صاحب کی اسپیشلی مہربانی سے جو ہے نا یہ AVLC کے ان کی توقع سے مجھے گاڑی ملی۔ پولیس چیف نے گاڑیوں کی چابیاں مالکان کے حوالے کی۔ شہریوں نے پولیس چیف کی گاڑیوں کی واپسی پر شکریہ ادا کیا۔ AVLC کی کارکردگی کو سراہا۔ انوشا جعفری، 24 نیوز، کراچی۔ DHA کے مکینوں کے لیے ٹریفک پولیس کا نیو ایئر نائٹ، مڈ نائٹ اور ڈے پر ٹریفک پلان جاری۔ ٹریفک پولیس کے مطابق متبادل راستوں والے علاقوں کے رہائشی اپنا اصل شناختی کارڈ دکھا کر جا سکیں گے۔ جبکہ حکومت سندھ کی جانب سے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی۔ IG غلام نبی میمن نے واضح کیا کہ بغیر سائلنسر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ نئے سال کا استقبال ٹریفک پولیس نے پلان جاری کر دیا۔ حکومت سندھ کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاذ، IG سندھ کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا اندیا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق شہر بھر سے عوام کلفٹن، باغ ابن قاسم، CVO کا رخ کریں گے۔ اختر کالونی کی طرف سے براستہ خیابان اتحاد CVO کی جانب جانے نہیں دیا جائے گا۔ CVO یا اطراف جانے والے 26 اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جا سکیں گے۔ 2 تلوار سے عبداللہ شاہ غازی مزار سڑک بند رہے گی۔ مالی پور روڈ سے براستہ جنا برج مائکولاچی کی جانب ہیوی ٹریفک کو اجازت نہیں ہوگی۔ ہیوی ٹریفک کو شام 6 بجے سے ٹریفک نارمل ہونے تک شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ DHA فیز 5، 6، 7 کے رہائشی فیز 8 کی گلیوں میں جانے کے لیے ذیل انٹرسیکشنوں کا انتخاب کریں۔ PIDC سے اللہ والی سگنل کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ PIDC کلب روڈ سڑک بند رہے گی۔ دوسری جانب IG غلام نبی میمن نے سال نو کے موقع پر سیکیورٹی اقدامات پر عوام سے بھرپور تعاون کی اپیل کی اور کہا کہ پارکس، ساحل، مصروف شاہراہوں، شاپنگ سینٹرز، دیگر عوامی اور تفریحی مقامات پر پولیس نفری تعینات ہوگی۔ IG نے واضح کیا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر بھرپور ایکشن ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ریڈ لائن BRT منصوبے کے تاخیر کا شکار ہونے پر اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی برس پڑے۔
علی خورشیدی نے کہا کہ جس رفتار سے اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے 2026 میں بھی یہ مکمل نہیں ہوگا۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبے کے سست روی کا شکار ہونے پر MQM پاکستان کو تشویش، سندھ حکومت کو ناکام قرار دے دیا۔ بہادرآباد مرکز پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی بولے کہ سندھ حکومت شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ BRT ریڈ لائن منصوبے پر کام ہو رہا ہے، اس کا مقرر کردہ تاریخ میں مکمل ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ میئر کراچی بھی کہہ رہے ہیں یہ پروجیکٹ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے۔ آپ کا جو ٹارگٹ ڈیٹ ہے، آپ نے آج بتایا کہ نہیں جی ہم 2026 میں بھی جو ہے 26 میں جا کے ہم اس ریڈ لائن کا افتتاح کر دیں گے۔ میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، پریس کانفرنس میں آپ تمام صحافی حضرات موجود ہیں، آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹ 2026 میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ خود میئر کراچی کیا کہہ رہے ہیں بھائی، خود میئر کراچی کیا کہہ رہے ہیں، وہ خود شرمندہ ہو رہے ہیں۔ بھائی آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کے بات کریں کہ وزیر کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے ابھی تک ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، کھل کے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ علی خورشیدی نے کہا کہ جن علاقوں میں 24 دن پانی کا بحران پیدا ہوا وہاں کے رہائشیوں کے 2 سے 3 ماہ کے بل معاف کیے جائیں۔ 24 دن پانی نہیں آیا ہے، 2 سے 3 مرتبہ آن ایوریج ڈسٹرکٹ ایسٹ کے وہ لوگ جو اس لائن سے پانی بھرتے تھے انہوں نے ٹینکرز کے ذریعے جو ہے وہ پانی بھرا ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ وہ تمام ایریاز جو اس لائن سے کنیکٹڈ تھے 25 دن ان کو سندھ حکومت کی وجہ سے پانی نہیں مل سکا، سب سے پہلے تو معافی مانگیں اور معافی مانگنے کے بعد ان کو کمپنسیٹ کریں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کہ اس صوبے کے باسی دن کے اوقات میں بھی گیس بندش کا سامنا کر رہے ہیں۔ سوئی سٹرن گیس کمپنی قوانین کی خلاف ورزی کرنے میں مصروف ہے۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ کسٹمز پوسٹ کلیئرنس آڈٹ EFS اسکیم کا 2 ارب 40 کروڑ روپے کا اسکینڈل پکڑ لیا۔ میسرز قاضی سنجرانی انٹرپرائزز کوئٹہ کے خلاف مقدمہ درج۔ PCA حکام کے مطابق سیمنٹ یونٹ نے دھوکہ دہی کی ہے، جبکہ اسکیم کے غلط استعمال سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے۔ چیئرمین FPR نے سخت نوٹس لے لیا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کاروبار کے نام پر بڑا دھوکہ، ممتاز سیمنٹ یونٹ کی چوری پکڑی گئی۔ ڈائریکٹریٹ پوسٹ کلیئرنس آڈٹ نے میگا ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم اسکینڈل کا انکشاف کر دیا۔ 2 ارب 40 کروڑ روپے مالیت کا میگا EFS اسکینڈل بے نقاب۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میسرز قاضی سنجرانی انٹرپرائزز کوئٹہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے کے مطابق میسرز قاضی سنجرانی انٹرپرائزز اربوں روپے کے فراڈ کی مرتکب ہوئی۔ کوئٹہ کے ممتاز سیمنٹ یونٹ نے دھوکہ دیا۔ PCA ساؤتھ کی رپورٹ کے مطابق اپنی نوعیت کے پہلے فراڈ میں بیک وقت برآمدی استثناء کا غلط استعمال کیا گیا۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم SRO 492 کے غلط استعمال سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق فیکٹری نے کلینک اور پیکنگ مٹیریل کی بڑی مقدار کو پورا کیے بغیر درآمد کیا۔ PCA کے ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹر ذوالفقار علی چودھری کی ہدایت پر جانچ کی گئی۔ ابتدائی جانچ میں کسٹم اور سیل ٹیکس کے عدد و شمار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بے ضابطگیوں کی وجہ سے فیکٹری کا فزیکل معائنہ ہوا۔ اسٹاک کی جانچ پر 4,63,334 ٹن کلینک کا پتہ چلا، جبکہ فیکٹری سے صرف 62,000 ٹن کلینک برآمد ہوا۔ 3,95,000 کلینک موجود ہی نہیں تھا۔ 3 ارب 30 کروڑ روپے کا مال غائب تھا۔ ممکنہ طور پر مال مقامی مارکیٹ میں فروخت کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ تافتان اور گوادر کی ڈرائی پورٹ پر مال ذخیرہ کیا گیا، لیکن یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا۔ درآمد کنندہ نے سامان کے استثناء سے فائدہ اٹھا کر بھاری درآمدات کی، لیکن مال کی تیاری میں ناکام رہا۔ DTRS اور مینوفیکچرنگ بانڈ پر ڈیوٹی اور ٹیکسز کی مکمل چوری سامنے آئی۔ پاکستان پوسٹ کلیئرنس آڈٹ 2 ارب 40 کروڑ روپے کا حیران کن نقصان سامنے لایا۔ مینوفیکچرنگ بانڈ کے ذریعے 36 کروڑ 90 لاکھ اور DTRS کے ذریعے 22 کروڑ 20 لاکھ روپے سامنے آئے۔ PCA کے مطابق جانچ میں ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں 1 ارب روپے مالیت کا مال چوری کر کے نقصان پہنچایا گیا۔ PCA نے مکمل جانچ کے بعد FIR درج کروا دی۔ سیکشن 32A کے تحت فراڈ پر تحقیقات کا آغاز ہو گیا۔ آڈٹ پر انکشاف ہوا کہ یہ معاملہ 2020 سے چل رہا تھا۔ چیئرمین FBR نے صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے اور تحقیقات میں تیزی لا کر مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت کی ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ اور سال 2024 سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی کے باوجود سرکاری اسکولوں کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ اسکول چھوڑنے والے بچوں کی تعداد میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ تفصیلات سید زبیر راشد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سال 2024 تعلیم کی صورتحال دشوار۔ سندھ میں تعلیم کے لیے خطیر رقم مختص ہونے کے باوجود سرکاری اسکول سہولیات کی عدم فراہمی کا شکار۔ صوبے کے 40,000 سے زائد سرکاری اسکولوں میں 52 لاکھ سے زائد طلبہ زیر تعلیم، لیکن اسکولوں میں سہولیات نہ ہونے کے برابر۔ سندھ کے
37% स्कूलों में पीने के पानी की सहूलत नहीं, 68% स्कूलों में बिजली गायब, 25% स्कूलों में वॉशरूम्स ही नहीं, 90% स्कूलों में हाथ धोने की सहूलत भी दस्तयाब नहीं, 49% स्कूलों को चार दीवारी ही नहीं है। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह कहते हैं सैलाब में सिंध के 20,000 स्कूल तबाह हो गए थे, उनकी बहाली के लिए काम जारी है। सिंध में स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद 55 लाख से जायद हो चुकी है। 56 लाख के करीब बच्चे हमारे सिंध में स्कूल से बाहर हैं। 20,000 स्कूल आउट ऑफ 41,000 स्कूल में से आपके अगर सैलाब में मुतासिर हो जाए, ख़त्म हो जाए, इतने वसीले आप मुझे दिखाएं, हम कहाँ से वसीले लाएं इतने स्कूल बनाने के लिए। अब सैलाब तो कुदरती आफत है, वो जब जो ऑलरेडी स्कूल खस्ता हाली का शिकार थे, जब बारिशें हुई तो वो मज़ीद ख़त्म हो गए स्कूल। अभी हमने कोशिश की, मेरे चेयरमैन बिलावल साहब, सीएम साहब ने भी डोनर कॉन्फ्रेंसिस में शिरकत की, उनको अपील की, हम आज तक कोई 3,500 के करीब स्कूल अभी तक ले पाए हैं। सिंध में सरकारी स्कूलों की अबतर सूरत हाल के बायस स्कूल छोड़ने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। पे ऑर्डर्स वक्त पर जमा, लेकिन 4 माह गुजरने के बावजूद आरओ प्लांट्स के लाइसेंस जारी न हो सके। प्लांट मालिकान वाटर कॉर्पोरेशन इंतजामिया पर बरस पड़े। प्लांट मालिकान ने शिकवा किया कि लाइसेंस में ताखिर होने से इलाका पुलिस और दीगर इदारे तंग कर रहे हैं। एहसान अब्बास से रिपोर्ट करेंगे। वाटर कॉरपोरेशन की सुस्त रवि, आरओ प्लांट मालकान परेशानी का शिकार हो गए। प्लांट ऑपरेटर्स का कहना है कि 4 माह हुए पे ऑर्डर जमा करवाए, मगर अब तक लाइसेंस जारी नहीं किए गए। आरओ प्लांट ऑपरेट करने के लिए सी कैटेगरी के लाइसेंस के इजरा के लिए तमाम कानूनी दस्तावेजात 25,000 के पे ऑर्डर के साथ जमा करवाए गए थे। 4 महीने हो गए इसका पे ऑर्डर जमा कराए हुए। इस उम्मीद पे जो है पे ऑर्डर जमा कराया था कि ताकि हम अपना कारोबार चला सकें, अपने बच्चों की रोटी रोजी कमा सकें। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा प्लांट वगैरह, ये टंकी वगैरह जो है लाखों रुपए खर्च किए, मगर उसका जो है कोई फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। आरओ प्लांट ऑपरेटर ने बताया कि लाइसेंस में ताखीर से इलाका पुलिस और दीगर इदारे तंग कर रहे हैं, जिसके बाइस कारोबार में मुश्किलात का सामना है। लाइसेंस हासिल करने के लिए लाखों रुपए का प्लांट नस्ब किया था। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने जांच पड़ताल तो मुकम्मल कर ली, मगर अब तक मीटर भी नहीं लगाए गए। लिहाजा आज भी जो है वो पुलिस भी हमें परेशान करती है, वाटर बोर्ड भी परेशान करता है, इस वजह से कि वो बोलते हैं कि कोई सबूत दिखाओ, कोई प्रूफ दिखाओ या लाइसेंस दिखाओ। समझे, अगर आप प्रोसीजर में गए हो तो लिहाजा जो है मेरी गुजारिश है, समझे, बाला हुकाम से वाटर बोर्ड के कि हमारी कुछ हेल्प की जाए, कुछ हमारा जो है ये आंसू जो है वो पोंछे जाए, ताकि जो है हम अपने बच्चों की रोटी और रोजी कमा सकें। प्लांट्स मालकान ने हुकाम से अपील की कि मामले को संजीदगी से लिया जाए और वक्त पर लाइसेंस का अजरा यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ एहसान अब्बासी, सिटी 21। आपको बताएं कि मलीर एक्सप्रेस वे को जल्द आवाम के लिए खोल देंगे। जयाले मेयर की जानिब से आवाम को बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। मुर्तजा वहाब का अगस्त 2025 में हब डैम की नई कैनाल से पानी लाने का वादा। शीरी जना कॉलोनी पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर वफाक और पीपल्स पार्टी में दूरियों की भी तरदीद कर दी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची सरगर्म। मुर्तजा वहाब ने शीरी जीना कॉलोनी में सेवरेज पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले, वसाइल को शहर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जल्द मौला मदद पंपिंग स्टेशन का भी इफ्तिताह करेंगे। आइंदा 2 से 3 रोज में लियारी का एक और मौला मदद पंपिंग स्टेशन जो है उसका हम विजिट करेंगे और उसको भी पब्लिक के लिए खोलेंगे। उस पंपिंग स्टेशन की भी ख़ास बात यही है कि वहाँ पर जो खाली ज़मीन थी उसको पब्लिक पार्क में केएमसी ने कन्वर्ट किया। वाटर बोर्ड ने अपने फंड्स को इस्तेमाल करते हुए उस पंपिंग स्टेशन को ठीक किया। और तीसरी चीज़, उसके अंदर एक आरओ प्लांट है जिससे मीठा पानी लियारी की आवाम को दिया जा रहा है। K4 मंसूबे पर तेजी से काम जारी होने का दावा करते हुए मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था कि हमने वादा किया था बिलावल आएगा तो पानी के मसाइल हल होंगे। अगस्त 2025 तक हम हब डैम की नई कैनाल से शहर में पानी लाएंगे। आज कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है, तो हमने ऐलान किया था, हमने वादा किया था बिलावल आएगा, पानी लेकर आएगा। और अभी भी जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ के बुजुर्ग शख्सियात
मुझसे गुफ्तगू करते हुए यही कह रहे थे कि यहाँ पर पानी की कमी का लोगों को सामना है, और उस पानी की कमी को बेहतर करने के लिए जहाँ आपके आरओ प्लांट वगैरह को हमने एक्टिवेट किया जो कि चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, हम जो हब की लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं वो तेज़ी के साथ वो काम चल रहा है। मेयर कराची ने पीपल्स पार्टी और वफाक के दरमियान दो रवैयों की अफवाहों को मन घड़त करार दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक की जामिन थी, है और रहेगी। वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे होते रहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसनैन के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। बिजली तकरीबन 5 रुपये तक सस्ती होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने नवंबर 2024 के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त कर दी, जबकि नेपरा 15 जनवरी को अवामी समात में फैसला करेगा। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। साल में बिजली की कीमत कम होने की तवक्को। कराची वालों के लिए बिजली तकरीबन 5 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। केएलटी की नवंबर 2024 के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में कमी की दरखास्त नेपरा अवामी समात 15 जनवरी को करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक केएलटी ने एफसीए में 4 रुपए 98 पैसे फी यूनिट कमी की इस्तदा की है। नेपरा दरखास्त की जाँच पड़ताल के बाद तहरीरी फैसला जारी करेगी। केएलटी के मुताबिक ये मुसलसल तीसरी एफसी है जिसमें सार्फिन को रिलीफ दिया गया है। अवामी समात के बाद नेपरा फैसला करेगी कि एफसीए किस माह के बिल में लागू होगा। दूसरी जानिब मुल्क भर के डिस्कोज ने नवंबर 2024 के लिए फी यूनिट बिजली 60 पैसे कमी की दरखास्त की है। केएलटी हुकाम का कहना है कि एफसीए का इन्हिसार ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव और जनरेशन मिक्स होने वाली तब्दीली पर होता है। शहरियों ने बिजली की कीमतों में मजूदा कमी को नाकाफी करार दे दी। आवाम तो अपनी भलाई चाहते हैं, गरीब आवाम के लिए नेपरा और ये के इलेक्ट्रिक वगैरह जो हैं अगर ये फैसला कर रहे हैं तो इसके लिए और अच्छी खुशखबरी क्या है। अभी तो ये 4 रुपये कुछ पैसे गिरा रहे हैं, उसके बाद पता चला 1 हफ्ते बाद फिर डबल पैसे बढ़ा के दे देंगे ये लोग। देखिए अगर के इलेक्ट्रिकल वाला जो है कम करते हैं 5 रुपये तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। हम रेंट भी रहते हैं, फिर भी अभी भी सिर्फ मेरे पास 2 पंखे हैं, अभी भी 6000 का बिल आया हुआ है। ये बढ़ा देंगे, कम नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है ये अप्रैल फुल बना रहे हैं, ये आवाम को बेवकूफ़ बना देंगे। अब देखना ये है कि कीमतों में मुस्तकिल इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत क्या इकदाम करती है। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में होने वाली समातों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कश्ती डूबने के वाक़े के बाद कार्रवाइयों पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने FIA को दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुने बगैर एक्शन ना करने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्रम शेरजमान की इलेक्शन पटिशन मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने लॉ ऑफिसर को हिदायत दी कि आइंदा समात तक तफसीली जवाब जमा करवाया जाए। सिंध हाई कोर्ट में जजिस की तैनाती से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन के रूल्स को चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जुडिशल कमीशन के रूल्स को गैर आईनी करार देकर कल अदम करार दिया जाए। दहशतगर्दों को मुबैना तौर पर फंडिंग करने का इल्जाम। इस्तगासा 2 मुल्जिमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। शर्की की अदालत ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत की। तो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 3907 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,15,258 की सतह पर बंद हुआ। मजीद तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। स्टॉक मार्केट फिर अपने ट्रैक पर चल पड़ी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से होने वाली तेजी का रुझान दिन भर जारी रहा। एक ही दिन में मार्केट 3,907 पॉइंट्स के इजाफे से 1,11,000 की सतह से बढ़कर 1,15,000 की सतह उबूर कर गई। स्टॉक ब्रोकर अब्दुल रऊफ का कहना है कि मार्केट में रोल ओवर का प्रेशर खत्म हो गया। उम्मीद है मार्केट में मजीद तेजी का रुझान आइंदा बरस भी जारी रहेगा। नहीं, फ्राइडे को जो लास्ट डे था रोल ओवर का, दिसंबर क्लोजिंग वगैरह का था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लोज हुई। आज मंडे को था कि शायद सेटलमेंट वगैरह होना था, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था, मगर मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। सुबह बहुत अच्छा प्लस गया, 1000 इंडेक्स प्लस गया। इस हिसाब से लग रहा है कि इंशाल्लाह ये दिसंबर के बाद जो नया जनवरी स्टार्ट होगा 2025, ये बेहतरीन नजर आएगा, क्योंकि अभी सारे 15 जनवरी के बाद नए अनाउंसमेंट आने शुरू हो जाएंगे। आज कारोबार के दौरान 465 कंपनियों के 1 अरब से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 40 अरब 88 करोड़ रुपए से जायद रही। दौरान कारोबार 333 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 84 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ अयाज राना, सिटी 21।
मुल्क में सोने के भाव ने 2024 में अपने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। फी तोला कीमत 2,87,900 रुपये तक पहुंच गई। इधर आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $2,784 की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। मज़ीद तफसीलात के लिए अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी के बाइस सोना महंगा। फी ऑन सोने की कीमत में इजाफा $2,082 से बढ़कर $2,784 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। फरवरी में सोने की कीमत साल की कम तरीन 2,10,800 रुपए तक रही। अक्टूबर में सोने की कीमतों को पर लग गए। सोना 2,87,900 रुपए में फरोख्त हुआ। साल भर में सोना 67,900 रुपए तक महंगा हुआ। ऑल कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हुसैन कुरैशी का कहना है, साल 2024 में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। महंगाई के सबब शहरियों की कुव्वत खरीद में कमी आई, जिसके सबब छोटा सराफा ताजिर बेरोजगार हो चुका। और इस साल जो है 2024 में एक बहुत बड़ा इजाफा सोने की कीमतों में देखने में आया कि तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,85,000 भी तकरीबन क्रॉस कर गया। तो इससे जो है इसके जो मामलात थे वो असरात थे। खुसूसी तौर पे हमने देखा कि जो आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा हुआ, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल थी, इससे पहले रूस और यूक्रेन का मामला था। जो पाकिस्तान में मकामी मार्केट भी जाहिर सी बात है इंटरनेशनल की वजह से जो है उतार चढ़ाव उसमें रहा। सोने का कारोबार करने वाले और सोने के कारीगरों का कहना है, इस साल महंगाई, सोने की बढ़ती हुई कीमतें और बिजली गैस महंगी होने के बाइस कारोबार शदीद मुतासिर रहा। ये साल कारोबार का हमारे लिए सही नहीं और अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बुलंद दर होने की कीमतें महंगी होती चले गए, इसलिए ना सेल हो रही है ना बिकने आ रहा है। पूरे साल में एक तो कीमतें इंटरनेशनल भी बढ़ी, उसकी वजह से लोकल जो मार्केट थी पाकिस्तान की उस पर भी इफेक्ट गया, क्योंकि डॉलर से उसका मैच रहता है। तो उसके अप होने की वजह से कारोबार को बहुत डिस्टर्बेंस रही, बहुत ज़्यादा। तो उसमें डाउनफॉल तो आया कारोबार में काफ़ी ज़्यादा। मुल्क में सोने की यकसा कीमत पर भी एक बहस मौजूद है, लेकिन ताहाल इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। देखना होगा कि 2025 तक क्या सोने की कीमतों के हवाले से मरबूत तरीक़ेकार होगा या माजी की तरह सोने की कीमत नए साल में भी 7वें आसमान पर पहुंचेगी। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। आपको बताएं कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और कारगा फन की जानिब से तख्लीकी सलाहियतों के फ़रोग के लिए एक मुनफरिद क्ले वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की जानिब ने भरपूर शिरकत की है। बर्तन और दीगर दस्तकारी के अनमोल नमूने, कदीम तरीन तहजीबों के अमीन मिट्टी के फनकार, आज भी तारीखी रिवायात को बरकरार करते हुए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और कारगाह फन की जानिब से मुनक्किदा वर्कशॉप के दौरान मुख्तलिफ तकनीकों के जरिए मिट्टी के मुजस्मे, बर्तन और दीगर दस्तकारी के नमूने बनाने का अमली मुजाहिरा किया गया। शुरका ने निहायत जोश और खरोश से अपनी तख्लीकात पेश की। मेरा पहली दफ़ा क्ले और पोट्री का एक्सपीरियंस था। मैं काफ़ी अरसे से करना चाही थी। कराची में बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं अनफॉर्चुनेटली करने के लिए, तो इट्स वेरी गुड कि ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है। ये जो इवेंट है ये क्ले आर्ट वर्कशॉप है, जिसमें पेंटिंग भी कराई जा रही है और क्ले भी वर्कशॉप कराया जा रहा है। तो इसमें ब्रीफिंग भी दी जा रही है और सबको बनवाया भी जा रहा है। तो इस तरह के इवेंट्स कराते रहने चाहिए ताकि हमारी कल्चरल सोसाइटी को जो है बेनिफिट मिले। इस इवेंट का करवाने का मकसद है कि ये क्ले एक्टिविटी बहुत टाइम से लोगों में पता ही नहीं है कि क्या होती है क्ले एक्टिविटी, तो इसमें ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं लोग और ये अच्छी एक्टिविटी होती है, जैसे कि रिलैक्स कर देती है। ये स्कूलों में भी होती है क्ले एक्टिविटी। इसके अलावा इसमें फ़न होता है, पेंटिंग होती है और डिफरेंट पोर्ट बनाते हैं। इसमें बड़े हों छोटे हों कोई भी कर सकता है इसमें पेंट। कारगाह फन के मुंतज़मीन का कहना है कि इस किस्म की वर्कशॉप्स का मकसद नौजवानों को तख्लीकी मैदान में आगे बढ़ाने की तरगीब देना है। पोट्री है ये बेसिकली, पोट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट और बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मोहनजोदड़ो से आप स्टार्ट हो जाएं, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, फिर मुल्तान का स्टाइल है पोट्री का। तो पोट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा पोट्री की तरफ लेके आएँ, वो कुछ अपने हाथ से काम करें तो उन्हें कुछ समझने में आसानी हो कि ये कितना मुश्किल फ़न है, और फिर वो जब अपने हाथ से एक चीज़ को बना कर दिखाते हैं तो एक बहुत अच्छा उनके लिए एक तो उनकी इन फ्यूचर मेमोरी बन जाती है और फिर आगे के लिए उनको समझने में, सीखने में, आर्ट की तरफ आने में बहुत आसानी होती है।
वर्कशॉप के दौरान नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें देखकर ये वाज़ेह होता है कि हमारा मुआशरा तख्लीकी हुनर से मालामाल है। कारगाह फन की जानिब से मुनक्किद की गई इस वर्कशॉप में नौजवानों की फनकाराना सलाहियतों को उभार कर बाहर निकाला और उनको बहुत कुछ सीखने का मौका दिया, जिसमें मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। कैमरामैन शहरियार अली के साथ समरीन राशिद, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।